Everyone, this is for class 8 chapter metals and non-metals. In the previous part we have seen the uses of metals and non-metals in detail. Now let's start with the new topic, which is corrosion of metals. What is corrosion? The process in which metal is eaten up by the action of air, moisture or a chemical on their surface is called corrosion. इसका मतलब ये है some metals, like which metals? Iron, copper, silver, when they come in contact with air or water or any other acid, then what happens? They get eaten up. It means they get corroded. So the examples of metals which undergoes corrosion are iron, copper, silver. आपने देखा होगा कि सपोज आपके घर में कोई आयरन की ग्रिल है, तो आफ्टर फ्यू इयर्स व्हाट हैपन्स, उसके ऊपर एक पाउडरी सब्सटेंस डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एज रस्ट एंड दैट इज नथिंग बट करोजन. मतलब वो जो मेटल था वो खराब होना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर एक पाउडरी लेयर जमा होना शुरू हो जाता है और वो पाउडरी लेयर और फ्लेकी सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं रस्ट. उसके वजह से क्या होगा, जो ग्रिल है उसका जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा. ओके, नाउ let's see in detail corrosion of iron. Now corrosion of iron is called as, is nothing but rusting of iron. Now what happens in rusting? When an iron object is left in damp air. damp air मतलब moist air. moist air मतलब humid air जो है, जिसमें हवा में बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, ऐसी एयर विच इज कॉल्ड एज डैम्प एयर, बहुत ज्यादा दिनों तक एक्सपोज करके रखते हैं. देन व्हाट हैपन्स, इट गेट्स कवर्ड विथ अ रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड एज रस्ट. उसके ऊपर एक पाउडरी डिपोजिशन देखने के लिए मिलता है ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट एंड दैट डिपोजिशन इज कॉल्ड एज rust, and the process is called as rusting of iron. Now as we know that rusting of iron is what type of change? It is a chemical change. So some chemical reaction must be taking place. So what is that reaction? In general we can write that reaction as iron reacts with oxygen which is present in air and water which is also present in air, as we are talking about damp air. So what happens? Hydrated iron oxide. Iron oxide is formed and this iron oxide is also called as rust. What is the color of this rust? It is reddish brown in color. Reddish brown flaky substance, that is called as rust. Okay, why hydrated is written over here? We will see that. See the chemical reaction which is taking place. Iron, that is Fe, reacts with oxygen present in air plus water present in air. It gives Fe2O3. Fe2O3. This is also called as ferric oxide. So what is getting formed? Iron oxide. And NH2O. I have written NH2O. And this H2O is nothing but water in hydrated form. So this complete substance is called as rust. Okay. Now one more thing. Why we are writing 2N over here? Because the content of water can be more or less. It depends upon the air in that particular area. Suppose we are staying in Mumbai and another situation is we are staying in Rajasthan, which is very much dry. Air is very much dry. So where the rusting will be more faster,
It will be definitely in Mumbai, which is a coastal region, and there the air is damp, very much damp. That is why rusting process is very much fast in humid atmosphere as compared to the dry atmosphere. That is why this amount of water which is present in air, it varies from place to place. That is why we are writing 2n over here. Okay, now we have seen that when rusting occurs, what happens? This iron oxide is getting formed, and this is called as water. Some amount of water is also present in that compound. So we are saying that it is hydrated. Hydrated means consist of water. So hydrated iron oxide. So hydrated iron oxide is getting formed, which is called as rust. Now suppose we talk about one activity where what we are taking the rust which is formed over here, and we are taking that powder, rust powder, and we are mixing it in water, small amount of water. So what do we observe? That rust remains suspended in water. It is so light, it is powdery, it is very, very light. That is why it floats, or not float, it just suspend. It doesn't settle at the bottom. So it remains suspended in water. Then what we will do is we will shake that suspension well. We will shake that rust plus water well and test with red and blue litmus papers. We will test that solution. Now what do we observe? We observe that red litmus paper turns blue. Now when is that possible? When the solution is basic in nature. Only then this is possible, that red litmus turns blue. So we have already studied this before when we have studied the chemical properties of metals and non-metals, where when any metal reacts with water, what happens? Either metal hydroxide is formed or metal oxide is formed along with the liberation of hydrogen gas. So in this case, what is getting formed? Iron, which is a metal, it is reacting with water, and what is formed? Iron oxide. Iron oxide. So here metal oxide is formed, and as this metal oxide is formed, it turns red litmus paper blue. It means this rust is basic in nature. Then the next metal which undergoes corrosion is copper. Now what happens? When copper object remains in damp air, again moist air, for a long time, it loses its shine. It becomes dull. Why it becomes dull? Due to formation of a green coating of copper hydroxide and copper carbonate on the surface of the object. Suppose हमारे पास कोई कॉपर का कॉइन है पुराना, बहुत देर तक, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी आर कीपिंग दैट कॉइन इन द एक्सपोज्ड एयर, डैम्प एयर में बहुत टाइम तक एक्सपोज करके रखा है. सो कुछ दिनों के बाद हमें क्या दिखाई देगा? कॉपर कॉइन के ऊपर एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस का डिपोजिशन देखने के लिए मिलता है. व्हाट इज दैट ग्रीन कोटिंग? वो ग्रीन कोटिंग किस चीज का होता है? इट इज ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट. सो व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? कॉपर reacts with oxygen which is present in air plus water which is present in air as the air is moist, plus the carbon dioxide which is also present in air, and what is getting formed? Copper hydroxide, CuOH twice. This is the formula for copper hydroxide plus CuCO3, that is copper carbonate. And because of the formation of copper hydroxide and copper carbonate, we see green coating on the object. The third metal is which undergoes corrosion is silver. सिल्वर का आपने देखा होगा कि कोई सिल्वर का ऑर्नामेंट पहना है, कुछ दिनों के बाद, या कोई सिल्वर का बर्तन है, यूटेंसिल इज देयर, कुछ दिनों के बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का डिपोजिशन
हो जाता है या इट टर्न्स ब्लैक आफ्टर सम डेज और फ्यू डेज. सो व्हाई डज इट हैपन? ये यूजुअली आपने देखा होगा कि जहां पे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है वहां पे बहुत जल्दी ब्लैक कोटिंग दिखाई देना शुरू हो जाता है. सो लेट्स सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स when silver objects are kept in air. They get tarnished. That process is called as tarnish or tarnishing. देखो कॉपर आयरन के लिए we are using the word rusting, not corrosion of iron. rusting of iron. कॉपर के लिए हम लोग बोल रहे हैं corrosion of copper और सिल्वर के लिए हम लोग बोल रहे हैं tarnishing of silver. Okay, so what happens when silver objects are kept in air? They get tarnished and gradually turn black due to the formation of a thin silver sulfide layer on their surface. होता क्या है? वो जो ब्लैक कलर का कलर दिखाई देता है ऑन द सिल्वर ऑब्जेक्ट्स, वो क्या है? इट इज सिल्वर सल्फाइड लेयर. व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? लेट्स सी दैट. सिल्वर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड. ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है दिस इज प्रेजेंट इन एयर. सो इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन एयर, गैस फॉर्म में होता है एंड इट फॉर्म्स सिल्वर सल्फाइड. Ag2S. Ag2S इज द फॉर्मूला. ये सिल्वर सल्फाइड जो है वो ब्लैक कलर का होता है अलॉन्ग विथ द हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. तो दिस इज अबाउट करोजन ऑफ मेटल्स. अब करोजन अगर हो रहा है तो वी हैव टू डू समथिंग टू प्रिवेंट द करोजन. हाउ वी कैन प्रिवेंट द करोजन? लेट्स सी सम वेज बाय विच वी कैन प्रिवेंट करोजन. सिंपल इज, हमें ये सोचना होगा कि करोजन कंट्रोल में या हम प्रिवेंट कैसे करें. सो कॉन्टैक्ट जो होगा किसके साथ? एयर और वाटर के साथ, वो ही हटा देना पड़ेगा. ओनली देन करोजन कैन बी प्रिवेंटेड. सो prevent the metals contact with air and water. अगर ये कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली करोजन रेजिस्टेंट हो जाएंगे मेटल्स. सो व्हाट कैन बी द फर्स्ट वे? फर्स्ट इज ऑयल, ग्रीस और पेंट. कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ऑयल अप्लाई करो या तो ग्रीस विच इज एक विस्कस एक सब्सटेंस होता है ब्लैक कलर का. आई होप यू नो व्हाट इज ग्रीस. उसका लेयर मेटल्स के ऊपर लगाओ या तो पेंट कर दो, मेटल्स को पेंट कर दो, सो दैट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ मेटल विथ एयर एंड वाटर विल नॉट बी देयर, सो दैट द करोजन इज प्रिवेंटेड. ये एक इजी वे है. दूसरा होता है डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स. प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन. इसका मतलब यह है कि आयरन का कोई ऑब्जेक्ट अगर है उसको मोल्टन जिंक में हम लोग अगर डिप करेंगे तो जिंक का लेयर आ जाएगा आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन. थर्ड इज वन मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मेटल ऑब्जेक्ट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ये आपको डिटेल में पढ़ना है इन द फर्दर चैप्टर्स. आई थिंक द चैप्टर्स नेम इज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस जो है वो डिटेल में पढ़नी है. उसमें क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट को हमको प्रिवेंट करना है फ्रॉम करोजन उसके ऊपर दूसरे मेटल का डिपोजिशन कर देंगे. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. कौन सा मेटल यूज करेंगे? जिसका करोजन नहीं होता है. ऐसा कोई ऑब्जेक्ट का प्लेटिंग या डिपोजिशन हम ऐसे मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर करेंगे जिसका करोजन होता है. Then the fourth way is a uniform protective layer of aluminum oxide is formed on an aluminum object and the process is called as anodizing. अब ये जो है this process is new for you. अब उसमें करते क्या है? एनोडाइजिंग में क्या करेंगे? Let's see this. ये अरेंजमेंट है. What is this? This is a tank. ये टैंक में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भर देते हैं. एनाडाइजिंग प्रोसेस कैसे करते हैं दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू. एक टैंक लेते हैं बड़ा सा, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भर देते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. देन
इलेक्ट्रोड्स होते हैं या 2 रॉड्स होते हैं। एक जो होता है रॉड उसको बोलते हैं कैथोड और दूसरा होता है उसको बोलते हैं एनोड। द रॉड और द इलेक्ट्रोड which is connected to negative terminal of the battery is called as cathode, and the one which is connected to positive terminal of the battery is called as anode. So this is our cathode and this is our anode. Now what is happening, हमें एनोडाइजिंग क्यों करना है? अगर सपोज हमारे पास कोई एल्यूमिनियम की स्ट्रिप है तो उसको अगर हमको हार्ड बनाना है, हमको उसे अगर करोजन फ्री बनाना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज दिस एनोडाइजिंग टेक्निक। उसमें क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है, मतलब इन दिस केस इट इज एल्यूमिनियम का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमको करोजन फ्री बनाना है, तो उसको यहाँ पे एनोड के जगह पे लगा देंगे हम लोग, एनोड के जगह पे वो ऑब्जेक्ट को लगा देंगे और करंट पास करेंगे थ्रू दिस। नाउ व्हाट विल हैपन, यहां पे धीरे 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 ये एल्यूमिनियम जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक थिन लेयर का कोटिंग डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। वो जो कोटिंग होगा दैट इज ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर एक थिन डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा and that deposition is of aluminium oxide. aluminium oxide जब डिपॉजिट होगा तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, एल्यूमिनियम जो सिंपल एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट था उसको ज्यादा हार्ड बनाएगा, वेयर रेजिस्टेंट बनाएगा, मतलब वो जल्दी अगर कोई स्क्रैच होता है या दूसरा कोई ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रब होता है तो वो चीज खराब नहीं होगी। उसके बाद करोजन रेजिस्टेंट भी बनाएगा। करोजन रेजिस्टेंट मतलब एयर या वाटर का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। सो दिस इज हाउ एनोडाइजिंग इज डन। तो सिंपल, मोस्टली एल्यूमिनियम के लिए या लेड के लिए यूज होता है। एल्यूमिनियम क्यों? एल्यूमिनियम जो होता है उसको अगर करोजन फ्री बनाना है हमको या करोजन रेजिस्टेंट बनाना है तो एनोडाइजिंग टेक्निक इज यूज्ड। The fifth way can be some other metals or non-metals are mixed with the metal objects by the process of alloying. Alloy बनाना मतलब एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिक्स करो या मेटल को नॉन मेटल्स के साथ मिक्स करो इन फिक्स्ड प्रपोर्शंस और उसका अलॉय बना दो, so that the original metal does not get corroded. So alloying can also be one of the techniques to prevent corrosion. Now, what is an alloy? What is an alloy? A homogeneous mixture of two or more metals. दो से ज्यादा metals हो सकते हैं और metals along with some non-metals, या metal और non-metals का mixture भी वो हो सकता है, is known as alloy. Okay. What are the different characteristics of alloy? First is alloys are generally hard, बहुत हार्ड होते हैं। एग्जाम्पल है स्टील। स्टील कैसे बनता है? इट इज आयरन प्लस कार्बन। अब इसमें दिस इज मेटल एंड दिस इज नॉन मेटल। सी, we have seen over here in the definition of alloy, metal plus non-metal. So why carbon is added to iron? Iron is already hard, but as we are adding carbon to it, it becomes more and more hard. So carbon increases hardness of iron. That is why we are adding carbon. Where it is used for construction of ships, then bridges and vehicles. Then the second characteristic of alloy is generally alloys are resistant to corrosion. इसीलिए तो हम अलॉइंग करते हैं टू प्रिवेंट करोजन। एग्जाम्पल है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का करोजन नहीं होता है। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्टेनलेस स्टील से बने हुए होते हैं। उनमें कौन कौन से व्हाट इज दैट मिक्सचर ऑफ? इट इज आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकेल। और कहाँ पे यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कटलरी, यूटेंसिल्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नाइव्स वगैरह जो होते हैं उनके सर्जरीज में जो यूज करते हैं वो सब स्टेनलेस स्टील से बने हुए होते हैं। देन हाई डेंसिटी कटलरी। कटलरी मतलब फोर्क, नाइफ जो यूज होते हैं, स्पून्स हमारे घर में किचन में, वो दैट इज कॉल्ड एज कटलरी। देन हाई अलॉयज जो होते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, उनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब
हाई लोड बेयरिंग कैपेसिटी उनमें होती है। फॉर एग्जाम्पल क्रोम स्टील, क्रोम स्टील क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन प्लस क्रोमियम। कहाँ पे यूज होता है, यूज टू मेक एक्सल, व्हील एंड एक्सल आपने सिंपल मशीन पढ़ा है, तो उसमें जो एक्सल बनते हैं व्हीकल्स में, दैट इज मेड अप ऑफ दिस क्रोम स्टील। और कटिंग टूल्स जो होते हैं, कट करने के लिए जो यूज होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ क्रोम स्टील। देन अलॉयज हैव, सम अलॉयज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। आपने देखा होगा कि जो घर में रिमोट कंट्रोल्स वगैरह होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि छोटी चिप होती है और चिप के ऊपर सोल्डर यूज होता है टू जॉइन टू मेटल वर्क पीसेस। तो वो सोल्डर क्या होता है, सोल्डर जो होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत इजीली कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। सो व्हाट इज दैट सोल्डर, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेड प्लस टिन। सो लेड 40% होता है एंड टिन इज 60% इन द सोल्डर। तो दो मेटल वर्क पीसेस को ज्वाइन करने के या दो वायर्स को ज्वाइन करने के लिए दिस सोल्डर इज यूज्ड विच हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। देन some more alloys are written over here along with their properties and uses. Just go through this. This is very easy. उसमें brass which is copper plus zinc properties are written, uses are written. Bronze, it is copper plus tin. Duralumin, it is aluminium plus copper plus magnesium plus manganese. German silver, it is copper plus zinc plus nickel. तो ये सारे alloys है, additional alloys are given along with their properties and uses. This is very very easy to understand. Just go through it. उसमें और एक चीज न समझने जैसी ये है, रेजिस्टेंस वायर्स क्या है। रेजिस्टेंस वायर मतलब इट इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर्स। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर्स है, ये हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें यूज होते हैं और वो पर्टिकुलर अप्लायंस में से, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में से कितना करंट फ्लो होना चाहिए, दैट इज डिसाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस वायर्स. So just go through this. If you have any doubt, you can just ask me. So here we end with our chapter. Thank you.